Hello, good evening all. Am I audible and visible? Hi Manas, Pari. Yes, I hope Pari saying hi. Hello Mani, Manoj, Manas, everybody. Manoj. Yes, hello everyone. So all of you are well prepared for the Olympiad? Yes, today we are completing year 2018 paper and that would complete like 35 plus 35, 70 questions. And I know all those who are having the exam on 19th, they are very well prepared and वो फोड़ देंगे exam को बिल्कुल एकदम. Like all questions correct, 50 on 50, mental ability की practice, I think so you are doing regularly. 25 questions ka drink of mental ability questions should be there repeatedly. On Sunday you should practice at least 50 questions of mental ability. By the time you complete class 8 NTSE का mental ability का syllabus सारा complete हो जाना चाहिए. ऐसे practice होनी चाहिए बिल्कुल. So welcome you all children after your Olympiad champ class. You are here, so that's great. So let's welcome and start with the first question of the day and question number 33 of paper 2018. Refer to the given figure showing life cycle of an insect and statements associated with it. देखो अगर आप पहले से करके रखते हो और आपको आंसर करना है तो आपका डबल रिविजन हो जाता है, बट इन अ वे यू कैन सेव टाइम डायरेक्टली you do them over here because you have a lot to learn about languages also in for the school exams, social studies also, plus practice your other batches work which you have joined at Vedantu. So refer to the given figure, life cycle of an insect. Insect is silkworm. All of you have recognized, correct? Good evening, Ira. Good evening, Achal. Yes, hi. And statements associated with it. Okay, you can see the diagram P, Q, R and S. अपने mind में लिख लीजिए like P is what stage, Q is what stage, R, S is what, and S is what. Now, commercial silk is obtained from which stage? Look here. Commercial silk is obtained from which stage? 1. That is option number 1. Second stage which undergoes 4 molds to become dash. Now, select the option which correctly fills. So, 1 में, I will again take you back to the previous slide. 1 में आपको ये बताना है commercial silk कौन सी stage से मिलती है. 2 में ये बताना है कि under 4 molds it goes to become what? Dash stage undergoes 4 molds. So, P, Q, R, S में से fill in the blanks करना है. Okay, options have started coming. So children are saying that option C is correct and you are right. Dharya, Manas, all of you are correct. Very good. अब सबको याद हो गई ये life cycle of moth. Yes. Commercial silk is obtained from the pupa stage and larva stage undergoes 4 molds to become pupa. And the cocoon is obtained from the pupa stage of the silkworm. Yes, answer is C. You are right. Sukhman Bullar. Very good. Now next question number 34 हमने 6:45 पर start किया है and we'll try right by 7:15 or 7:30 we finish all the questions, right? So half an hour में फटाफट से पूरा पेपर रिवाइज करेंगे with explanation. सबको अब ग्राफ्स पढ़ने की आदत हो गई है. रेफर टू द गिवन ग्राफ रिप्रेजेंटिंग टेम्परेचर ग्रेडियंट थ्रू रीजन्स ऑफ द अर्थ. Means P is below 50, that means it is around 25 degrees Celsius. Q is at 0 degrees Celsius, R at minus 25, and S at 50. So it is the, sorry. Wait. I have to pick up the soft pen from here. Yes. Sometimes it does not work. I don't know why. Today again the soft pad is not working. Wait. 1 minute. 1 minute. In some of the presentations, it does not work. Today it's not working. Yes. S is at 50. Okay. S is at 50. R is at minus 25. Q is at 0. And P is at 25 degrees Celsius. So you are asked P, Q, R, S. Dheer Pandey says, animals inhabiting S possess blubber. Blubber kin mein hota hai? Blubber is present in which animals? Yes. Blubber is present in which animals? Okay. Animals inhabiting R may have small body appendages to reduce the exposed surface area. Animals inhabiting P do not drink water which are at 25 degrees Celsius. S कितने डिग्री सेल्सियस पर था?
S is at 50. Sorry. And your correct answer is option B. Correct answer is option B. Animals inhabiting R may have small appendages to reduce the exposed surface area. Right. So, next, Y. Animals inhabiting are at low temperature areas, may have small body appendages, small ears to reduce the exposed surface area, to retain more heat as their blood vessels are less exposed to cold air. So this is the reason also. You should know the reason. And what is blubber? It is a thick layer of fat present in whales or seals to keep them warm in icy water. And estivation is in hot weather, hibernation is in winter. So, yes, Akhil, hi, hello, Dharya, yes, polar bear, Ira, correct. Okay. Now comes question number 35. 35. Which of the following options contain only complete flower? Which of the following contain complete flower? Yes, children, subscribe the channel to stay updated with upcoming courses. You will get to know many courses. We are beginning on 21st December with the course. And Manas Roy is correct. Gabriel Rajkumar is correct. Yes, children are well prepared. Ronak Sharma, hello. Yes, yes, yes. And hibiscus mustard petunia. Complete flower means it has both androecium and gynoecium, both male and female whorls are present in these plants. And can you tell me the term which is used for a plant which is complete, which has both? Which has both? It is monoecious. जिसके plants अलग अलग, flowers अलग अलग होते हैं, they are dioecious. So hibiscus mustard petunia is a complete flower having all the four whorls. राइट सो कंप्लीट फ्लावर अदरवाइज दूसरे प्लांट्स में कोई ना कोई प्लांट ऐसा है जिसका मेल अलग और फीमेल अलग सो कंप्लीट फ्लावर इज वन विच हैज फोर वर्ल्स अटैच्ड टू द फ्लोरल स्टॉक दीज फोर ऑर्गन्स आर whirl of sepals called as calyx, whirl of petals called as corolla, whirl of stamens called as androecium, and carpels gynoecium. Right. A large area of forest was cleared by burning. राइट ये अगेन एनवायरमेंट का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस एक्टिविटी आप अपनी कॉपी में करेक्ट और नॉट करेक्ट लिखते जाएंगे इंक्रीज इन सॉइल इरोजन एज सॉइल इज डायरेक्टली एक्सपोज टू विंड एंड रेन द लैंड विल हैव मोर फ्रेश एयर as there are lesser trees to take in oxygen. Wildlife will easily thrive in cleared areas because more space is available now. New trees will grow faster and replace the burnt forest soon as the ash of the burnt trees make the soil more fertile. मानस मैंने तो अभी ऑप्शंस ही नहीं दिया आपके पास ऑप्शंस कहाँ है ऑप्शंस तो अब आए हैं यस विच वन ऑप्शन ए इज करेक्ट आप प्रीवियस ये पेपर्स खोल के बैठे हैं क्या यस गैब्रियल ऑप्शन ए इज करेक्ट First only reason why because increase in soil erosion as soil is directly exposed to wind and rain अगर trees का deforestation हो गया तो जो wind और rain के साथ soil will be flowing with water or air the land will have more fresh air as there are lesser trees absolutely wrong trees तो चाहिए fresh air के लिए wildlife will easily thrive in the cleared area because more space is available now. Wildlife will easily thrive in cleared areas because more space. No, wildlife is available, easily thrives only when it is among the dense forests. New trees will grow faster and replace the burnt forest soon as the ash of the burnt trees will make the soil more fertile. No. So only option 1 is correct. Clearing of land by cutting forest will increase in soil erosion. Everybody knows that. Okay. चलिए आगे चलते हैं कुसुम बाजपेयी मैम स्टार्ट अ सीरीज फॉर क्लास 8 also okay I'll take into consideration but Kusum we are having the series of NSE NTSE for class 8 we'll do that अभी इस साल जरा 7th और 6th पर ज्यादा जोर है आप 9th में आ जाओ 9th में बहुत कुछ मिलेगा 3 months बचे हैं बस 8 के you can join the NTSE head start and foundation batch Consider the following statements and select the option which currently identifies true and false ones. अगर आपको किसी को भी कुछ पूछना है तो you can mail at reenumrt68@gmail.com. Right? So consider the following options and select the option which correctly identifies
True and false. In cockroaches, air enters the body through spiracles. Okay. There says it's true. During heavy exercise, we get cramps in the legs due to accumulation of CO2. अगर आप बोलते हो कि सेकंड ऑप्शन फॉल्स है तो मुझे इसका आंसर चाहिए कि इसमें क्या रिप्लेस होना चाहिए. What is to be replaced? And normal range of breathing rate per minute in the average adult is 12 to 18. Okay. Then during exhalation, the rib moves upwards. I want second option में yes, lactic acid, right. Okay. And during exhalation, the ribs moves inwards. So which option is correct? C option is correct. First and third were true and second and fourth were false. Why? During exhalation, आप देखो सांस लेके देखो, you breathe in air. When you breathe in air, you blow your stomach outwards. And when you exhale air, you take your stomach inwards. So ribs move downwards and inwards, decreasing the chest cavity. This increases the air pressure inside the lungs and forces air out of the lungs, right? Exhalation, air बाहर निकल रही. Air बाहर कब निकलेगी? जब आप stomach को अंदर ले जाएंगे. तो उसी से समझ लो कि ribs inwards and decreasing the chest cavity, right? Okay, no problem, धैर्य. मैम क्लास 10th को ओलंपियाड क्लास. बेटा 9th and 10th में ओलंपियाड इंपॉर्टेंट नहीं है. 9th और 10th में एनटीएससी इंपॉर्टेंट है. अगर आपके घर में किसी ने एनटीएससी स्टेज 1 क्लियर किया हो तो टुमारो से वी आर लॉन्चिंग एनटीएससी स्टेज 2 का प्रिपरेशन बैच. यू कैन टेल टू एनीवन इन योर सराउंडिंग्स इन योर स्कूल इफ somebody is cleared NTSE stage 1. Observe the given figure. These are the ribs. Stage 1 for many states is over. लेकिन जो 2020 के बिगनिंग में स्टेज 2 होना था, इट वाज अबाउट टू हैपन इन मे, वो कोविड की वजह से हुआ नहीं था. मे वाला स्टेज 2 इज हैपनिंग इन फेब्रुअरी नाउ, राइट. ऑब्जर्व द गिवन फिगर. लंग्स में एयर आ रही है, डायफ्राम डाउनवर्ड जा रहा है, रिब्स आउटवर्ड जा रहे हैं. ओके, पहले डायग्राम ड्रॉ कर लो, एक ऐसी रफ डायग्राम कि लंग्स में इनवर्ड्स है, डायफ्राम नीचे की तरफ है, रिब्स आउटवर्ड्स है. So what will be the condition of the given structures when we breathe in air? पिछला क्वेश्चन एक्सहेलेशन पर था, ये इनहेलेशन पर है. Yes, I've started getting the answers. Dheer Pandey is giving me the answer option C. Okay. Anybody else? आप कुछ और कहना चाहते हैं? Okay, Gabriel Rajkumar is also saying C. And C is the correct answer. Dheer, you are right. Dherre, you are right. Yes. What will happen? Rib cage, condition of given structure will breathe in. Breathe in. अभी जब exhale कर रहे थे तो downwards और inwards था. This is up and out. Diaphragm will contract and lung pressure will be low. What will be the condition when we breathe in? हम ले रहे हैं air तो वो high pressure से low pressure की तरफ rush करेगी, तो lungs में pressure low है. During inhalation, diaphragm contracts and flattens and the chest cavity enlarges. क्लियर कर लो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, नोट करना. वैसे भी जितने लोग योगा करते हैं या प्राणायाम करते हैं उनको पता होगा व्हेन वी ब्रीथ इन एंड व्हेन वी ब्रीथ आउट, तो उससे आपको इजी रहेगा याद रखना. यस, हाउ मेनी ऑफ यू डू योगा इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग? कितने लोग प्राणायाम करते हैं या करना जानते हैं? यस, आई लिख के भेजो. ऑल दोज हु डू योगा. Pranayam is very important for meditation because your brain should get full oxygen. And children brains should also get glucose intermittently. आपको 1-1.5 घंटे में कुछ ना कुछ खाना है. बहुत ज्यादा फूड ही नहीं होना है, चीज एंड ऑल नहीं खाना है, बट ये सूप, जूस, फ्रूट्स, कुछ ना कुछ खाते रहना है. ग्लूकोज का बिस्किट. यस. Refer to the given relationship based on the mode of seed dispersal. Very good, Pari. Radhika, आप योगा करते हो, बहुत अच्छी बात है. वेलकम राधिका. Refer to the given relationship based on the mode of seed dispersal. सीड डिस्पर्सल पर हर बार एक क्वेश्चन आ रहा है. तो उस दिन हमने फाइबर टू फैब्रिक रिवाइज किया था, अब एक दिन सीड डिस्पर्सल भी रिवाइज कराएंगे. हिप्टेज, ज़ैंथियम, कोकोनट. एवरी टाइम देयर इज अ क्वेश्चन ऑन सीड डिस्पर्सल. मींस सीड एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं, या तो विंड से या एयर से, थ्रू एनिमल. सो इट इज द मोड यू हैव टू राइट ऑन द you have to base on the mode of seed dispersal. आप इसकी फोटो क्लिक कर सकते हैं, उनको नोट कर लीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन. अभी मैंने ऑप्शंस दिखाए नहीं है. सेम हिप्टेज, ज़ैंथियम, कोकोनट में जैसे वाटर डिस्पर्सल होता है, बिल्कुल उसी के पैरेलल. ओके, सो हिप्टेज, ज़ैंथियम, कोकोनट. चिल्ड्रन आर सेइंग ऑप्शन डी
My goodness, सबको बिल्कुल clarity है. In hyptase, seeds are dispersed by wind and water, and similarly in drumstick. इन xanthium वो होता है जो छोटा कांटे वाला होता है, जो आपके जब आप कभी जंगल से कहीं से निकल रहे हो या कहीं पिकनिक पर गए हो और बहुत सारे वहां पर वाइल्ड प्लांट्स हैं, तो इट स्टिक्स टू योर क्लोथ्स. कितने लोगों ने देखा है xanthium? हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस्ड दैट स्टिक्स टू योर क्लोथ्स? Yes, in xanthium it occurs by animals, similarly in urina, and in coconut seed dispersal is done by water, therefore in lotus, because coconut trees are near the sea. So wahan par seed girte and then they, with the flow of the water, they go to the other places and they are dispersed. Refer to the given experiment. You're right, Neil. Ma'am, will we get the link for the class 7 batch in WhatsApp group? Yes, Neil, you will get it. Priya ma'am will share the links. Yes. And also all those who are already enrolled, they will also get it. Refer to the given experimental setup. Yes. Look at this experimental setup. You will get the links also from tomorrow. I will display it in the YouTube session also. See, Monday, 21st December, many batches are beginning. जो बच्चे शुरू से जून से पढ़ रहे हैं, दे शुड नो, वो ओलंपियड बैच ना ज्वाइन करके फाउंडेशन बैच ज्वाइन करें. और दोज who were new in these Olympiad 6 and 7 batches और उनको लगता है बहुत heavy नहीं होना है अभी, they should join school Olympiad. हर एक बैच में कुछ डिफरेंट होगा, कुछ नया होगा. अपनी क्लास से ही जरा सा लेवल ऊपर पढ़ेंगे और क्लास का भी रिवाइज करेंगे. राइट. रेफर टू द गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप एंड बिलीव मी योर फाइनल एग्जाम्स विल गो वेरी गुड, बिकॉज आपको सारी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी तो सेंटेंसेस तो आप बना ही लोगे सब्जेक्टिव के. पर if you can handle, if you can do the work, then only join, because you have to do maths Avengers work also. अगर आप Avengers का काम नहीं करोगे, NTSE हेड स्टार्ट का नहीं करोगे, तो फिर फायदा नहीं होगा. राइट. सो अगर आप कर सकते हो मैनेज तो ठीक है, बट काम भी करना है. ओके, दिस इज अ बीकर. रिवर टू द गिवन, दिस इज द सॉल्टी वाटर. बाहर डिस्टिल्ड वाटर है. दैट मीन्स इधर सॉल्ट का कंसेंट्रेशन, सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन ज्यादा है, इधर सॉल्वेंट का कंसेंट्रेशन ज्यादा है. बीकर में है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है. डिसाइड कर लो अंदर से बाहर फ्लो करेगा या बाहर से अंदर, किधर लेवल इंक्रीज होगा, किधर लेवल डिक्रीज होगा. राइट. सो एक्स इज व्हाट, रिमेंबर, X is what? X and Y. X is regarding the volume of the liquid in beaker X. X बाहर वाला distilled water है और Y अंदर वाला salt है. अब आपको ये बताना है कि किस में लेवल इंक्रीज होगा और किस में डिक्रीज होगा. यस, किस में इंक्रीज होगा और किस में डिक्रीज होगा. यस. X is the volume of the liquid in the beaker, distilled water, and Y is the salt water. Yes. So what will happen? Okay, Maninder is saying A, Manas is saying A. Yes, yes, I am giving you the time. Okay, Manas. Yes, Ananya Jha is saying A. Some children must have opened the question. Ira is saying A. Ananya Jha A. Very good. Yes, yes, I am waiting for more answers, more participation. Yes, Gupta is saying A. Okay, yes. Option A is कर रहे. क्यों? जिधर सॉल्वेंट ज्यादा है उधर से रश करेगा टुवर्ड्स द सॉल्ट. यस. सो इन ट्यूब there is salt solution which has more number of solute particles with respect to solution in the beaker. Therefore, solvent from beaker X will move towards Y due to osmosis. And this happens in the cell also in our body. Osmosis ka process is movement of solvent from higher concentration to lower, means जहां पर पानी की concentration ज्यादा है. जैसे if you soak kishmish raisins in water, then they swell up because water from the outside rushes into the raisins until and unless जैसे आप खीर में अगर किशमिश डालते हो तो swollen हो जाती है. Okay, you are नमन. Okay, नमन. Okay, नमन शीदा. Very good. So because आपने देखा है खीर में किशमिश डालते हैं swollen हो जाती है किसी भी स्वीट डिश में, because किशमिश के अंदर सॉल्यूट कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, शुगर बहुत ज्यादा है. सो अगर उसको वाटर में भी डालेंगे तो वाटर विल रश इनसाइड, दे विल बिकम स्वोलन, दे विल बिकम लेस स्वीट बिकॉज ड्यू टू ऑस्मोसिस. जो उसके आउटर मेम्ब्रेन है, इट वर्क्स लाइक अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज व्हाट? which allows selected particles to go in and out of the cell. Yes, you are right, hypotonic and hypertonic solution. Refer to the given table and select the correct option regarding P and U.
रिगार्डिंग प्लांट पार्ट, रूट, रूट से क्लाइंबिंग जिसमें होती है दैट इज पी, नोट कर लो. रूट से क्लाइंबिंग जिसमें होती है वो पी, स्टोरेज जिसमें होता है दैट इज क्यू. आई ऑल्सो क्लिक इट, ओके, because even I have to see the question. Okay, I click the question because when we go to the other side, then we are unable to see. Yes, yes, yes. Okay, not now. Right. हाँ, रूट से क्लाइंबिंग पी में, स्टोरेज क्यू में, स्टेम से क्लाइंबिंग आर, एस से प्रोटेक्शन एस, लीफ से क्लाइंबिंग टी, एंड रिडक्शन इन वाटर लॉस यू. रिडक्शन इन वाटर लॉस पहले ही देख लो. लीफ रिडक्शन वाटर लॉस किस में होता है? डेजर्ट प्लांट्स में होता है. लीफ का क्या बन जाता है? ओके, सो यू हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन जो इससे मैच करता है. राइट. P could be beetle, S could be bougainvillea, U could be opuntia. Yes. Q could be ginger. क्या जिंजर स्टेम है? Q जिंजर है तो ये तो क्रॉस आउट हो गया. Yes, आपका ऑप्शन बी तो गया. P could be ivy, R could be spinach, and T could be orchid. P could be tapioca, S could be rose, and U could be bougainvillea. So you had to tell which is the correct option. वेरी गुड. ऑप्शन ए इज करेक्ट क्योंकि आपको साफ साफ पता चल रहा है. अगर आपको सब कुछ नहीं भी पता है तो आपको पता है यू इज ओपनशिया. इट इज अ डेजर्ट प्लांट इन विच लीव्स आर रिड्यूस्ड टू स्पाइन. एंड ऑल्सो सी एस, एस बोगनविलिया इज फॉर प्रोटेक्शन. उसकी स्टेम इज, उसमें थॉर्न्स होते हैं. सो स्टेम परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन. एंड P could be beetle. So P is beetle जिसमें roots climbing का काम करती है. So option A was correct, absolutely correct. Climbing roots are present in beetle. Stem helps in protection in bougainvillea, and opuntia leaves are modified into spines to reduce water loss. अगर आपको एक भी clue पता चल रहा है तो आप अपना आंसर पकड़ सकते हो. Right? Refer to the, yes, refer to the given table representing 3 different types of soils, X, Y, Z, and the respective percolation rates of water. आप पहले नोट कर लो. X का 4 है, Y का 10 है, Z का 7 है. That means percolation rate means सबसे ज्यादा पानी किसमें सीप करता है? Y में. सबसे कम पानी किसमें सीप कर रहा है? X में. और Z में मीडियोकर. राइट. सो X किस में सबसे ज्यादा सीप कर रहा है? Y में, विच इज फ्लोइंग. परकोलेशन रेट ऑफ वाटर. परकोलेशन इज पासिंग थ्रू. यस, परकोलेशन इज पासिंग थ्रू. राइट. Percolation is the property of absorption of water by the soil. So soil X could be more suitable for growing paddy. X कैसी थी? जिसका 4 रेट था. Soil Z could be more suitable for growing cotton, जिसका 7 था. Soil Y could be plowed easily, whereas soil X could be difficult to plow. Soil Y किसका था? जिसका 10 था रेट. और none of these. एक बार देख लेते हैं. Y का 10 था, X का 4 था, Z का. Okay, children are answering me D. Let's check. Yes, D is the answer. Y. X could be more suitable for growing paddy. For paddy, soils with good water retention with amount of clay and organic matter are ideal. Right? और X में water retention है ही नहीं, 4 है उसका rate. For cotton, sandy soil is the best with pH between 5 to 8. It is a black soil. It is rich in iron. So you select the incorrect statements regarding them. So all are correct. None of them is incorrect. Because soil X could be more suitable for growing paddy क्योंकि उसे percolate नहीं कर रहा, water pass नहीं हो रहा, retain कर रहा है. So it is the best soil for paddy. Soil Z could be the most suitable for growing cotton because it is sandy loamy soil and it is also black soil. तो आपको soil में से हर बार question आ रहा है. So you have to revise the chapter soil thoroughly. Next, read the given passages. There are 3 types of blood cells. अरे हम question number 43 पर पहुंच गए 32 से. Wow, 11 questions done. Okay, अब हमें 7 questions 7 minutes में करने. There are 3 types of blood cells, X, Y, and Z. X is biconcave disc. लिख लो क्या है ये? RBC है, contains hemoglobin. Y protects us from many diseases. सबको पता है. WBC है, leukocytes हैं, white blood cells हैं.
Z helps in blood clotting, सबको पता है platelets है. Okay, so X is RBC, Y is WBC, Z is platelet. Select the incorrect option regarding XYZ. NSO के एग्जाम की बात यह है कि अगर ये स्कूल एग्जाम होता तो वो कहते फिल अप कर दो, आप सीधे लिखते आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट, बट यहाँ कुछ और ही पूछा होगा, देखते हैं क्या पूछा है, कंफ्यूज करने की कोशिश करी होगी. बट अब नाउ वेदन्स आर नॉट गोइंग टू गेट कंफ्यूज, दे आर वेल प्रिपेयर्ड. People living in higher altitudes have higher X count as compared to people living in plains. High Y people living in higher wait. Yes, people living in higher altitudes have higher X count as compared to people living in plains. High Y count indicates some infection in the body. WBC बढ़ जाते हैं, आप TLC DLC कराते हैं. Decrease in Z also indicates infections like dengue. Decrease in Z count, आपको पता है जब डेंगू होता है तो ब्लड प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, तो कई बार प्लेटलेट्स इंसर्ट करनी पड़ती हैं. People with very low X count continue means RBC to bleed even from minor injury as the blood does not clot. Clot में RBC का रोल नहीं है. So which is incorrect? Option D is incorrect. X is red blood cells, Y is white blood cells, and Z is platelets which help in clotting at the site of injury. Right. Very good, Gabriel, Dheer, Pari, Sukhman. बहुत बढ़िया, excellent participation. Wonderful. Come on, read the given passage carefully. The organisms P and Q occur on the forest floor. अच्छा, forest floor पर P and Q रहते हैं. They convert the dead organic waste generated in forest into simpler substances. देखो forest में बहुत सारे animals भी died पड़े होते हैं, बहुत सारा leaf fall पड़ा होता है. So उस पर जो काम करने वाले हैं, जो उसको decompose करने वाले हैं, वो P and Q हैं. Which can be then they generated in the form into simpler substances, and these simpler substances can be reused by organism R for their growth and development. तो हमें बताना है P Q R कौन होंगे. एक तो हमें क्लियर हो गया कि P और Q में से कोई एक तो बैक्टीरिया है, राइट. अब कौन है? P and Q could be bacteria and fungi. हमें पहले देखना है करेक्ट या इनकरेक्ट. करेक्ट. आप हर क्वेश्चन पे आपको अंडरलाइन करना है करेक्ट या इनकरेक्ट. और इस बार ऑनलाइन कर रहे हो तो करेक्ट आप अंडरलाइन भी नहीं कर पाओगे, आप पेपर पर लिखोगे करेक्ट स्टेटमेंट. और अगर चीटिंग के चक्कर में पड़ोगे कि ऑनलाइन है हम देख के कर लें, तो अब एक क्वेश्चन का आंसर ही ढूंढते रह जाओगे कि पीछे के आंसर्स रह जाएंगे. तो आपको बहुत फास्ट करना है. ओके. P and Q could be bacteria and fungi respectively, whereas R could be plants. P and Q could be bacteria and P and Q could be bacteria and plants. मतलब P bacteria और Q plants and R fungi. मतलब fungi plants के ऊपर grow करेगी. P and Q could be plants. मतलब P and Q decomposition कर रहे हैं and R जो grow कर रहा है वो bacteria है. P and Q could be herbivores, whereas R could be detrivore. सो आपको करेक्ट बताना है. राधिका का सबसे पहले, राधिका का आंसर आया सबसे पहले, एंड नमन चीदा का आंसर आया. धैर्य, मानस, अभिलक्ष, वेरी गुड, वेलकम अभिलक्ष. तो मजा आ गया आपको देख करके. यस, बढ़िया. धैर्य, धीर, वेरी गुड. धीर इज वेरी मच रेगुलर इन क्लासेस ऑल्सो. मानस, ओके. P and Q could be bacteria and fungi. और डेड एंड डीके के ऊपर बैक्टीरिया फंगाई ही काम करते हैं. और जब वो उसको डिकम्पोज कर देंगे, उसका मेन्योर बना देंगे, उसका कंपोस्ट बना देंगे, तो आर प्लांट्स विल ग्रो ऑन दैट. वेरी ट्रू. अरे हम बातें करते करते, डिस्कस करते करते क्वेश्चन नंबर 45 पर पहुंच के हमें पता ही नहीं चला. हाफ एन आवर तो आप यूं ही मिल के कप के साथ निकाल देते हैं. आधा घंटे तो आप यही कहने में निकाल देते हैं, अच्छा मम्मा अभी करते हैं, अभी करते हैं. ओके अनुराग संसवाल, आई रिसीव्ड योर मेल. यस. Which of the following is not a reflex action? Reflex action कहते हैं जो अपने आप होता है, जिसके लिए रिफ्लेक्स काम करती है नर्वस सिस्टम में, आपको सोचना नहीं पड़ता. Blinking of eyes, sneezing on entry of some dust form particles, learning to play guitar, withdrawal of hand on touching some hot object. जो काम अपने आप से होता है, जो अपने आप से होता है, रिफ्लेक्सेस में होता है, जिसके लिए ब्रेन को बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं जाती, समझना नहीं पड़ता, जो क्विक होता है, जो फास्ट होता है. सो ब्लिंकिंग ऑफ आईज, दैट मीन्स आपको रिफ्लेक्स एक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है. आंसर इज लर्निंग टू प्ले गिटार. बिकॉज ब्लिंकिंग ऑफ आईज हैपन ऑन देयर ओन. सी एकदम से मिट्टी आएगी तो आपकी एकदम बंद हो जाएगी,
तो बहुत ही फास्ट एक हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है। वो ऐसे नहीं है कि अभी मैसेज को लेके जाएंगे न्यूरॉन्स ब्रेन को बताएंगे, ठीक है मैसेज जाता है, बट वो रिफ्लेक्स आर्ट के थ्रू इतनी जल्दी वो एक्शन होता है दैट इट हैपेंस ऑन इट्स ओन। लर्निंग ऑफ गिटार ऐसे नहीं कि आपने गिटार को देखा और बज गया, ओके। इस लर्निंग ऑफ प्लेइंग गिटार इज नॉट अ रिफ्लेक्स एक्शन, बिकॉज उसमें आपको ब्रेन लगाना पड़ता है। ऐसे नहीं कि आपने गिटार देखा और वो बज गया, ऐसे नहीं होता है। ब्लिंकिंग ऑफ आई, स्नीजिंग, डस्ट जाती है आप एकदम से, यू स्नीज आउट। एकदम से आप हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हो, करंट को टच करते हो, विड्रॉ योर हैंड। सो लर्निंग टू प्ले गिटार इज नॉट अ रिफ्लेक्स एक्शन। क्लियर? रिफ्लेक्स एक्शन क्लियर हुआ आप लोगों को? यस। I told you that you keep 7th, 8th, 9th, 10th books at your home. वैसे I will be teaching you also. पर जब हम बायो पढ़ाते हैं तो बायो में आप लोग इंटरेस्ट कम लेते हो। बायो में ऑलवेज द ग्रेडिंग ऑफ द सेशन इज लाइक नॉट गुड। आप लोग एंजॉय करते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कुछ सॉल्विंग, कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए, ओके। आ गया इलेक्ट्रिसिटी का करंट, एक्टिव हो जाओ। लीना हैड सेट अप द एक्सपेरिमेंट एज शोन इन द फिगर। इसमें 2 बैटरी लगी हैं, कॉइल्स हैं, कॉइल पर ध्यान दिया जाए, पास पास वायर्स कॉइल्ड है। इसमें एक सेल लगा है, कॉइल दूर दूर है, स्टीन नेल है, ओके। हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो ये मैग्नेट का काम करेगा, दिस विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब व्हाट वुड एस फाउंड दैट द स्टील नेल इन सेटअप एक्स हैड अट्रैक्टेड मोर आयरन पिन्स। पहली बात तो उसने आयरन पिन्स क्यों अट्रैक्ट किए? बिकॉज इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमने पढ़ा है कि वन ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज मैग्नेटिक इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट भी है लेकिन मैग्नेटिक भी है। अगर आयरन नेल में करंट पास हो रहा है तो स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट, इट अट्रैक्ट्स द नेल्स। बट एक्स अट्रैक्ट्स मोर नेल, जिसमें 2 सेल लगी थी, एंड वाई अट्रैक्ट्स लेस नेल। रीजन क्या हो सकता है? बैटरीज यूज इन सेटअप एक्स आर मोस्ट एक्सपेंसिव। बढ़िया वाली बैटरीज लगाई हैं एक्स में। देर आर मोर बैटरीज यूज्ड अप इन सेटअप एक्स। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल अराउंड द नेल इन सेटअप वाई लेस है। लेस होगा तो नेल ज्यादा अट्रैक्ट करेगा देन इन सेटअप एक्स। एक्स में राउंड ज्यादा है, वाई में कम है, इसलिए वाई ने कम नेल्स को पकड़ा, एक्स ने ज्यादा नेल्स को पकड़ा। अ लॉन्गर वायर वॉज यूज इन सेटअप एक्स। सो विच इज करेक्ट? 2 and 3 ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो देखें 2 and 3 क्या है कि देर आर मोर बैटरीज एंड मोर नंबर ऑफ कॉइल्स। फिर से डायग्राम देखो, अगर ज्यादा बैटरीज होंगी, ज्यादा करंट पास हो रहा है और ज्यादा कॉइल्स हैं तो इट विल गेट मैग्नेटाइज मोर, okay, magnetic field will be more. So what could be the reason for this? Second and third are the reasons, okay, not first and third. अभी लक्ष्य क्लियर हुआ? फर्स्ट क्यों नहीं है? स्टील बैटरीज एक्सपेंसिव बैटरीज नहीं, बैटरी सेम ही है दोनों में, ओके। बैटरी तो बैटरी ही है, अगर वो उतना ही वोल्ट का करंट दे रही है तो सेल ही है। रेफर टू गिवन टू द फूड चेन। प्लांट, फूड चेन है, प्लांट is eaten up by insect, insect is eaten up by bird, bird is eaten up by hawk. In an operation to eradicate disease spreading insects, insects कुछ disease spread कर रहे थे तो insecticide spray करा गया। Select a graph that depicts the population changes of different species involved here. सबसे ज्यादा किसकी स्पीशी पर फर्क पड़ेगा? सबसे ज्यादा किसकी स्पीशी फर्क पड़ेगा? मीन्स किनके नंबर्स कम होंगे, आपको वो ऑर्डर अरेंज करना है। आप ये लिख लो, सबसे कम किसके होंगे, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उसके ज्यादा। मीन्स किसके ऊपर सबसे कम इफेक्ट पड़ेगा, किसके ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। हॉक के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा क्या, या बर्ड पर पड़ेगा, या इंसेक्ट? सोचना पड़ेगा, ओके। ओहो, एक तो पहले सोचना, ऊपर से ग्राफ। ग्राफ फिजिक्स में होते हैं, बायो में ग्राफ कहां से आ गया? फूड चेन, फूड वेब में हमेशा ग्राफ आता है। ग्राफ को पढ़ना सीख लो। ये ग्राफ कहता है कि हॉक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कहता है बर्ड्स की पॉपुलेशन बढ़ेगी, इंसेक्ट्स की घटेगी। ये कहता है कि कॉन्स्टेंटली पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, तो इंक्रीज तो होगी नहीं, ऑप्शन बी तो कट हो गया, राइट। और कहीं ना कहीं किसी की पॉपुलेशन पे अगर फर्क पड़ रहा है, सॉरी, तो हॉक कांस्टेंट नहीं रह सकता, कुछ ना कुछ तो उसमें फर्क पड़ेगा। एंड सी में अगेन वो कह रहा है हॉक स्ट्रेट है, नो। सो वाई ऑप्शन डी आप लोगों ने बिल्कुल सही पहचाना, ऑप्शन डी है। क्यों? इंसेक्ट्स का एकदम स्टीप डाउन होगा। अब आपने फिजिक्स कर लिया, मोशन चैप्टर, ग्राफ समझते हो, एकदम से फॉल होगा इंसेक्ट, क्योंकि हमने इंसेक्टिसाइड डाला है। उसके बाद बर्ड्स को फीड करने को इंसेक्ट्स कम मिलेंगे, तो थोड़ी भूखे बर्ड्स
will be dying, तो birds के ऊपर फर्क पड़ेगा, right? And birds का नंबर लेस होगा तो हॉक के ऊपर भी फर्क पड़ेगा, लेकिन हॉक्स पर सबसे कम फर्क पड़ेगा. So option D is correct. Varda, you are right. Insecticide will directly affect the population of insect. Therefore, their population will decline rapidly. Straight line shows rapid. As insecticide will move to birds and hawks indirectly, their concentration will increase slowly. In them, their declining rates will be slower. Wonderful. बच्चे 48, 49, 50 देखते हैं तीनों क्वेश्चन किसके ठीक होते हैं. अब तक हमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी है. ओके, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का जिंक के साथ रिएक्शन. आज हमारा पेन काम नहीं कर रहा है, सो आई वोंट बी एबल टू राइट द रिएक्शन. गैस एक्स, कोई रिएक्शन कोई बता सकता है विच गैस इज एक्स? बिफोर, आई डोंट वांट द ऑप्शन. I don't want the option. I want X is which gas? I want X is which gas? Yes. It is which kind of reaction? In the given figure, one reaction takes place. कौन सा kind of reaction? हम reaction बता दें क्या? Zn plus H2SO4 will give you ZnSO4 plus H2. H2SO4 में से जिंक ने हाइड्रोजन को बाहर भगाया. So it is which kind of a reaction? It is displacement reaction. कितने लोग चाहते हैं कि मुझे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की क्लास लेनी चाहिए? ऑल्दो ये आपके डायरेक्टली सिलेबस में नहीं है शायद. कितने लोग चाहते हैं यू वांट अ क्लास ऑन टाइप्स ऑफ रिएक्शंस? ओके, Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2. Zn मोर रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, सो Zn ने H2 को बाहर भगा दिया. जब उसको रिप्लेस कर दिया तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बिकॉज हाइड्रोजन को अपनी जगह से हटा दिया. ओके, नेक्स्ट इज which is a chemical chain dash being more reactive than that produces gas. Dash being more reactive than, कौन ज्यादा रिएक्टिव है? जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, राइट? किससे? हाइड्रोजन से. कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस. बर्न्स विद व्हाट? पॉप साउंड. हाइड्रोजन गैस इज द गैस विच बर्न्स विद द पॉप साउंड. कैसे? जब गैस रिलीज होती है, जो आप 10th क्लास में जाओगे लेबोरेटरी में हम एक्सपेरिमेंट कराते होते हैं, जिंक ग्रैन्यूल्स सिल्वर से कलर के होते हैं और छोटे छोटे मेटल के पीसेस जैसे होते हैं. उसमें H2SO4 जब डालते हैं तो जिंक सल्फेट इज फॉर्म्ड, क्लियर सोल्यूशन इज फॉर्म्ड और गैस निकलती है. गैस को कैसे टेस्ट करते हैं? वी ब्रिंग द मैचस्टिक, जलता हुआ मैचस्टिक अराउंड इट, और हाइड्रोजन गैस में फप फप जैसे पॉपकॉर्न बनते हैं, ऐसे आवाज आती है. Though we don't allow children to do it as it is dangerous because hydrogen gas is combustible gas. समझते हैं आप combustible का मीनिंग? हम जब एक क्वेश्चन बताते हैं तो हमको 10 चीजें बतानी होती हैं. So this is the benefit of attending the discussions. इसको बोलते हैं combustible को, जो खुद जल जाता है. तो हाइड्रोजन जब तक जल के खत्म नहीं हो जाएगा ऑक्सीजन में, it will be burning with the pop sound. And जो गैसेस सपोर्ट करती है कंबस्शन को, जो उसको जलने में हेल्प करती है, दे आर कॉल्ड एज, दे सपोर्ट कंबस्शन, जैसे ऑक्सीजन. तो हाइड्रोजन बर्निंग में सपोर्ट नहीं करता, इट डज नॉट सपोर्ट कंबस्शन, बट इट इज कंबस्टिबल, राइट? सो इज इट क्लियर टू यू? इट्स अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया है क्योंकि जिंक हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है, एंड हाइड्रोजन का टेस्ट इट बर्न्स विद द पॉप साउंड. कम टू नेक्स्ट, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. Yes, you are right, Dhairya. Refer to the given dichotomous key. Dichotomous key का मतलब होता है जब हमें दो से कंपेयर करना पड़ता है, उसका एक क्लू ऊपर दिया होता है, दूसरा नीचे. जैसे इट, इसको पढ़ना सीखो पहले. एकदम से अगर फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो क्वेश्चन ही समझ नहीं आएगा. लेकिन अब क्योंकि लास्ट कंटिन्यूअसली 3-4 डेज से, टुडे इज द 4th लेक्चर वी आर डूइंग इट, आई होप मेनी कैन अंडरस्टैंड. It can synthesize its own carbohydrates. Go to second. Second option says it grows in nitrogen deficient soil. जो अपना फोटोसिंथेसिस कर सकता है, बट इट ग्रोज इन, उसको नाइट्रोजन वाली सॉइल नहीं चाहिए. बेटा ये डायरेक्टली किसी चैप्टर से नहीं होते, बट वैसे ये फूड एंड न्यूट्रिशन से, ये न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का ही क्वेश्चन है, बट डायरेक्ट नहीं पूछा. और इसमें साथ में दूसरा क्वेश्चन भी मिक्स्ड है, चैप्टर भी मिक्स्ड है, जिसमें आप मॉडिफिकेशंस पढ़ते हो प्लांट्स के. So you can't say directly it is from which chapter. Okay, ma'am, please keep a class in Olympiad Chams tomorrow for discussing previous year's papers. Dheer, okay.
शेड्यूल्स पहले से फिक्स्ड होते हैं. आई कैन नॉट प्लान एनीथिंग. इट ग्रोज इन नेक्स्ट है. इट कैन नॉट सिंथेसाइज इट्स ओन फूड. Yes, P is what? It cannot synthesize its own carbohydrates. And go to third. Third is what? It is a stem parasite. ढूंढ के रखो. It cannot means वो autotroph नहीं है और वो stem parasite है. Okay? Autotroph नहीं है और stem parasite है. सेकेंड एज कहता है इट ग्रोज इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल. पी हो गया, क्यू हो गया. आर के बारे में पढ़ते हैं. इट डिपेंड्स ऑन आर. इट इज अ रूट पैरासाइट. इट इज अ रूट पैरासाइट. और थर्ड को कौन जा रहा है? इट कैन नॉट सिंथेसाइज इट्स ओन कार्बोहाइड्रेट्स एंड इट इज अ रूट पैरासाइट. मीन्स अब ऑटोट्रॉफ भी नहीं है और रूट पैरासाइट है. नेक्स्ट इज T. It is a root parasite. And fourth, it depends on living host for water and mineral. So देखते हैं. सेलेक्ट द ऑप्शन. थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है, इतना आसान नहीं है. आप एक क्लू आराम से पकड़ सकते हैं कि अगर कोई नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में ग्रो कर रहा है एंड इट कैन सिंथेसाइज इट्स ऑटोट्रॉफ है, तो ऐसे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करिए. कोई गेस कर सकता है इसको? Madhavi, ma'am, I am not understanding. Yes, it's a difficult question. Now you will understand. See, ऐसे देखो. P, डायोनिया. अगर आप एक एक को पकड़ते चलो, आपने P को पकड़ा. P में से कौन सा प्लांट ऐसा है? P मीन्स प्लांट है और वो नाइट्रोजन सॉइल नहीं चाहिए उसको. दैट मीन्स इट फीड्स अपॉन इंसेक्ट्स. इट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. उससे उसको नाइट्रोजन मिलता है. राइट. इट इज वीनस फ्लाई ट्रैप. डायोनिया का दूसरा नाम है वीनस फ्लाई ट्रैप, जो आपकी 7th क्लास की बुक है जिसमें सारा प्लांट्स के मॉडिफिकेशंस के बारे में दिया है, फूड के बारे में दिया है. उसके सारे एग्जाम्पल्स अच्छे से लर्न करने, क्योंकि यही एग्जाम्पल्स बार बार आ रहे हैं. कस्कुटा, मिसलेटी, रेफ्लिशिया, डायोनिया. सो विच चैप्टर इज इट, धैर्य? यस, सर्वेश दवे. ओके, नो राव, आई मीन 6th स्टैंडर्ड. ओके, 6th वाले का सेशन है बेटा 7:45. राइट, अभी 7th का चल रहा है. राइट, टाइम होने वाला है. मिसलेटी, सैंडलवुड. सो यहाँ से यू विल बी सीइंग दैट इट विल सेटिस्फाई ऑल. यहाँ पर एक्सप्लेन किया. डायनिया ग्रोज इन नाइट्रोजन, इंसेक्टिवोरस, स्टेम पैरासाइट है, रेफ्लिशिया रूट पैरासाइट है, मिसलेटी इज ऑल्सो स्टेम पैरासाइट एंड सैंडलवुड इज रूट पैरासाइट. सो यू हैव टू लर्न all parasites के examples, climbers के examples, और I will give you a brief on this. जैसे हमने fiber to fabric का दिया था, इसका भी brief देंगे. Okay, refer to the given Venn diagram and select the incorrect options. Animal which possesses, last question of the day, which possesses endoskeleton and which possess sticky pads. वो X होगा. Endoskeleton means या तो bony या cartilaginous skeleton है उसका, and with sticky pads on feet. Z is only which possesses endoskeleton. Y में endoskeleton भी है और animal with streamlined body है. आपको incorrect बताना है, तो आप पहले characteristics लिख लीजिए. Yes, धीर. Okay, NSO is on 19th. Reading. Okay, you can ask the doubt. Why is penguin wings modified into flippers and possesses blubbers? आपको बताना है which is incorrect. और साथ में देखो, आपको दो चीजें देखनी है. आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखनी है. इतना आसान क्वेश्चन नहीं है ये. और आपको यही 2-3 क्वेश्चंस आपकी रैंक डिसाइड करते हैं, क्योंकि वन क्वेश्चन पर नियरली 500 to 800 चिल्ड्रन आते हैं. अगर आपका एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ तो आपकी रैंक 500 फॉल होगी. मतलब आप स्कूल टॉपर होते होते रुक गए, जोनल टॉपर होते होते रुक गए. ओके, सो ये नहीं कि आपने प्रीवियस ईयर देख लिया, उसका आंसर देख लिया, टिक कर लिया, सामने रख के बैठ गए और फिर हम विनर हो गए. अगर आपको सही में समझ आया, चीजें याद है, यू शुड बी सेटिस्फाइड. सो एनिमल विच पोजेसेस एंडोस्केलेटन ओनली इज Z. जिसमें एंडोस्केलेटन भी हो और स्टिकी पैड्स भी हो वो X, और जिसमें एंडोस्केलेटन हो और स्ट्रीमलाइन बॉडी हो वो Y. तो पहले आप देखो एंड यू हैव टू टेल विच इज इनकरेक्ट. Okay, why is penguin wings modified into flippers? Right, possesses blubbers. क्योंकि ठंड में होते हैं तो blubber होगा to store fat. Z is chameleon, long sticky tongue, prehensile tail,
और साथ में जेड में एंडोस्केलेटन है बिकॉज वो रेप्टाइल है. ओके, सारे कॉर्डेट्स में एंडोस्केलेटन होता है. एक्स, ऑक्टोपस squeezes ink to escape predators and bears 8 arms. बहुत टेक्निकल पूछा है. ऑक्टोपस में पढ़ते ही आप सोचोगे 8 आर्म्स एकदम करेक्ट है. पैंगोलिन, कितने लोगों ने पैंगोलिन सुन रखा है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड और रेड अबाउट पैंगोलिन? पैंगोलिन किस किस को पता है? पैंगोलिन बताओ पहले, किस किस को पता है? ओके, pangolin cap, armored shell as outer body covering for protection, ability to turn into a ball when threatened, armored shell as outer body for protection. Some children are right. Option C is the correct answer because means option C is correct. ये incorrect option है. क्यों? क्योंकि उसके 8 arms लिखे हैं, उसके 6 arms हैं and 2 legs हैं, और उसका फाइलम मोलस्का है. उसमें ये गलती थी कि उसमें एंडोस्केलेटन नहीं होता मोलस्का में. एंडोस्केलेटन इज बोनी और कार्टिलेजिनस स्केलेटन ऑफ वर्टिब्रेट्स. एंड पेंगोलिन्स कौन है? दे आर द कॉर्डेट्स, दे आर मार्सुपियल्स, डैस्टर्स, दे कैरी यंग वंस इन देयर पाउच लाइक द कंगारू. दे आर कॉल्ड एज द मार्सुपियल्स. सो NSO is the Science Olympiad. ऋषभ राज, आप मेरा एक वीडियो देखना YouTube पर, like why is it important to appear in Olympiad examination. सबसे पहला वीडियो है, then you will come to know about all these NSOs and all. So that's great. Without taking your time, आज आपने 45 minutes दिए क्योंकि पेपर थोड़ा टफ था आज का. लास्ट के 3-4 क्वेश्चन टफ थे. अब आपको ये पता चल रहा है कि आपको कौन से चैप्टर्स करने हैं, राइट? सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है सारा प्लांट मॉडिफिकेशंस वाला चैप्टर करिए, राइट? सो थैंक यू सो मच. बाय ऑल ऑफ यू. You have to study also. Bye bye. Okay. Goodbye all of you.